Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and this session is for class 10th. In class 10th we have completed the asexual reproduction. Now we are going ahead in this lesson and we will understand what is vegetative propagation. First of all, you should understand what is vegetative and what is the meaning of propagation. So for that I am having this plant. Look at this. You are having a different type of plant and they are having different type of part. Clear? So you can see that this is the root, this is the stem and these are the leaves. So what parts you are observing? कौन से parts आप observe कर रहे हो? You are observing root, you are observing leaf, you are observing stem. Clear? But which part you are not observing? You are familiar with that part. आप उस पार्ट से फैमिलियर हो बट यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट पार्ट इन दिस प्लांट, दैट इज फ्लावर. वो है क्या? फ्लावर. सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? दैट इज फ्लावर. क्लियर? इफ वी रिमूव द फ्लावर फ्रॉम एनी प्लांट, वट एवर पार्ट्स वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज वॉट? दैट इज वेजिटेटिव पार्ट. वो है क्या? दैट इज वेजिटेटिव पार्ट. क्लियर है? ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट? द पार्ट विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यूजुअली दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन. वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जैसे इफ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट, देन व्हाट विल यू टेल यू? दैट रूट एंकर द प्लांट. वो क्या करता है? एंकर करता है, मतलब रूट प्लांट को सॉइल में क्या करता है? होल्ड करता है. ठीक है. एंड दैट हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर. वो क्या करता है? रूट क्या करता है? दैट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. दिस इज द फंक्शन ऑफ द रूट. नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ द स्टेम? स्टेम परफॉर्म दैट इट कंडक्ट द वाटर. It act as a stalk like structure on which all the branches, all the leaves, fruits, flowers, those are bear on the, that is born on the stem. Clear? And that also conduct the water from the soil. Clear? Now come to the leaf. What is the function of the leaf? Leaf perform photosynthesis. So nowhere you are just observing or you know that any part can perform reproduction. ऐसा भी होता है. ठीक है. तो दैट्स वाई दीज पार्ट्स आर नोन एज व्हाट? वेजिटेटिव पार्ट. इसीलिए इन पार्ट्स को हम क्या बुलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. क्लियर है? सो इन द प्लांट्स देयर आर टू पार्ट, लाइक एज इन आवर बॉडी देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स. वन इज सोमैटिक सेल्स, अनदर वन इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स. इफ वी टॉक अबाउट आवर फिंगर सेल्स, आवर ईयर सेल्स एंड अदर सेल्स, दोज आर नोन एज सोमैटिक सेल्स. इन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? सोमैटिक सेल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट द टेस्टिस, ovary, that is the male and female reproductive organ, means those are the reproductive organ. So we also have two type of organs, two type of cells, somatic cells and reproductive cells. But in our body only reproductive cells participate in the reproduction. No somatic cells participate in the reproduction. But in the case of plant, clear, in the plant, as I told you, there are vegetative part. Other than the vegetative, other than the flower, these parts can also participate in the reproduction. Clear? So that's why it is known as what? Propagation. वैसे it is propagation is a English word which means spread. कोई भी चीज़ अगर बहुत vast amount में अगर spread हो रही है, फैल रही है, तो उसको हम क्या बुला सकते हैं? Propagation. Clear? So vegetative propagation or vegetative reproduction, you may call it is vegetative propagation or it is vegetative reproduction. And remember, the vegetative propagation will always take place in the plant. It will not take place in the animal. Animal में vegetative propagation नहीं होगा. क्लियर है? सो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं. बाई ऑब्जर्विंग दिस प्लांट यू कैन सी द रूट, स्टेम एंड लीव्स. And buds also, you can include buds also from where the leaf arise. So those parts are included in the vegetative part. And flower is a reproductive part. Flower क्या है? Reproductive part है. Clear है? So if these part participate in the reproduction, now how will they participate in the reproduction? Like as you all are having rose plant at your home. ठीक है. जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या उन सबके पास रोज़ का प्लांट है अपने घर पे? हो सकता है, बिकॉज रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है. रोज़ प्लांट ऐसा है दैट बियर अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. दैट्स वाई यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट हैव द रोज़ प्लांट एट देयर होम. अपने घर पे वो रखते हैं, अपने घर पे उसको जर्मिनेट करते हैं, अपने घर पे प्लांटिंग करते हैं. क्लियर है? तो आपने जब कहीं पे भी रोज़ प्लांट लेके आते हो तो क्या करते हो? द थिंक अबाउट इट.
आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि वेन एवर वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड वी वांट रोज प्लांट टू बी कल्टिवेटेड एट आवर होम, तो व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, वी जस्ट आस्क फॉर अ स्टेम। आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं कलम दे दो, ठीक है, और इंग्लिश में हम कहते हैं कि स्टेम दे दो उसकी। कहीं पे गए हैं एंड इफ योर फ्रेंड इज हैविंग द प्लांट्स ऑफ रोज एंड ही और शी डज नॉट वांट टू गिव यू द प्लांट, वो आपको प्लांट नहीं देगा लेकिन आपको क्या दे देगा, वो स्टेम दे देगा। क्लियर है? एंड यू विल ब्रिंग दैट स्टेम एट योर होम एंड यू विल कल्टिवेट दैट, उसको कल्टिवेट करोगे, उसको ग्रो करोगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट यूजिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट, यू आर यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट। आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो, वेजिटेटिव। एंड डू फ्रॉम दैट पार्ट द न्यू प्लांट विल अराइज, यस, ठीक है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द रोज, कटिंग ऑफ द रोज ऑफ द स्टेम can just result to the a new plant. So we can say from stem a new plant just develop or not, yes, it do develop. That's why it is known as what, vegetative propagation. Have you seen a potato at your home? ठीक है, आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा आजकल के टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, वार्म भी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पोटैटो पे आपने देखा होगा आईज आ जाते हैं, लाइक एज आई कैन शो यू इन द पिक्चर, ठीक है, ये आपने कंफर्म देखा होगा, सब लोग ने देखा होगा अपने घर पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पोटैटो ज़्यादा आ जाता है या कम भी आता है, एक पोटैटो कहीं पे रख गया, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, एक पोटैटो लेना, अगर आपने कभी भी लाइव ऑब्जर्व नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, टेक अ पोटैटो, पुट इट इन अ मॉइस्ट प्लेस, कहीं पे उसको आराम से कहीं पे ऐसे ही रख दो कुछ दिन के लिए, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस पार्ट, उस पर देखोगे कुछ ऐसे पार्ट्स निकल आए। पता है अगर इन्हीं को हम सॉइल में लगा दे तो द न्यू प्लांट विल अपीयर, new plant will develop from this part. What is happening, the potato is what, potato को हम क्या बुलाते हैं, वेजिटेबल है, ठीक है, लेकिन वेजिटेबल क्या हो रहा है, वेजिटेबल मतलब स्टेम, अगर देखा जाए तो पोटैटो है क्या, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्टेम, बड्स अराइज, स्टेम पे क्या आ जा रहे हैं, बड्स आ जा रहे हैं, बड्स क्या किस में डेवलप हो जा रहे हैं, न्यू प्लांट में डेवलप हो जा रहे हैं। तो द वेजिटेटिव पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन और नॉट, यस, ठीक है, एंड वट एवर दिस पार्ट यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज नोन एज प्रोपेग्यूल, ठीक है, प्रोपेग्यूल मतलब द पार्ट विच जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट, दैट इज नोन एज प्रोपेग्यूल, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? Sometime you listen, I think you heard that you are bringing your father or mother is asking for the stem, ठीक है, और कलम, आपने हिंदी में सुना होगा कलम या स्टेम, स्टेम लेके आते हैं किसी भी प्लांट की, जैसे चाइना रोज की, मैंगो की भी सुना होगा, इनको लाके अपने घर पे लगा देते हैं और आफ्टर फ्यू डेज रूट्स अराइज फ्रॉम दैट पार्ट एंड a new plant develop। इसका मतलब है ना रिप्रोडक्शन, भाई आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यही तो पढ़ रखी है, फ्रॉम एनी पार्ट इफ ए न्यू इंडिविजुअल अराइज, न्यू इंडिविजुअल ग्रो, देन दैट इज अ रिप्रोडक्शन। वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट द टॉपिक। अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ इट इज क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। In plants, it is a method of asexual reproduction. Now, question: why it is asexual reproduction? Because in asexual reproduction, you already know only one parent is involved. So, in this part, what is happening? If you are bringing one stem, if you are cultivating the potato, cut part of the potato, those contain eyes, then what is happening? Only one parent is involved. That's why it is a type of asexual reproduction, which the parts other than the seeds are used to propagate. आपको पता है, अगर किसी भी प्लांट को, नए प्लांट को डेवलप करना होता है, यूजुअली वी यूज सीड्स, हम उसके सीड्स लेके आते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते, ठीक है। आपने कभी बनाना में सीड्स देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो हाउ दे विल रिप्रोड्यूस? वो प्रोपेगेशन कैसे करेंगे, वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? दे विल रिप्रोड्यूस और प्रोपेगेट विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर? In fact, it is a method of propagation in those plants which have lost the capability to produce seeds, जिनमें सीड प्रोड्यूस ही नहीं होते। जैसे आपने रोज के कभी सीड्स नहीं सुने होंगे, ठीक है। ग्रेप्स के कुछ ग्रेप्स होते हैं, जो अब जो ग्रेप्स आते हैं उसमें सीड्स नहीं होते। बनाना में सीड्स नहीं सुने होंगे, ठीक है। पाइनएप्पल,
पाइनएप्पल में भी सीड्स नहीं, तो दे रिप्रोड्यूस विद द वेजिटेटिव पार्ट। ये किस पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट से। क्लियर हो गया? सो एमंग फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज रूट, स्टेम, लीफ और बड, दे ऑल आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट आई जस्ट show you that what are the vegetative part. Clear? If they will participate in the reproduction, simple, that is known as vegetative propagation. Now come to there are two type of vegetative propagation, natural and man-made or artificial. Like as when you put the potato at the warm place by moisturizing it or undisturbed for few days, then what happen? Naturally the buds appear. And if you leave that potato in the soil, then what will happen? The plants will grow from that potato. उस potato से plants भी grow करने लगेंगे। ठीक है? Once it is an incident in my lab, एक incident मेरे lab में भी हुआ था कि in the 11th class there is a practical, तो the students have brought the potato लेके आए थे। ठीक है? Some of the potato they left in the lab. ठीक है? लैब में छोड़ गए, वहाँ पे सॉयल रखी थी, उस सॉयल में छोड़ गए। ठीक है? आफ्टर सो मेनी डेज इट वाज अननोटिस्ड। ठीक है? मैंने भी उसको नोटिस नहीं किया, बट आफ्टर सो मेनी डेज व्हेन आई ऑब्जर्व अमेजिंगली, ठीक है, आई हैव सीन फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट लिटिल पोटैटो फ्रॉम दैट पोटैटो फर्स्ट टाइम। तो यू कैन आल्सो डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। क्लियर? एंड इट विल जस्ट इंक्रीज योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है? और प्लांटिंग में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जो टाइम अब आ रहा है उसमें आप प्लांटेशन करेंगे। ठीक है? पॉल्यूशन से बचेंगे, बहुत ज़्यादा ये सब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ जस्ट हैव द इंटरेस्ट इन द प्लांटिंग। ठीक है? प्लांटेशन में अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, आप नेचर से जुड़ने लगोगे। क्लियर है? सो इट कैन बी अ टू टाइप, दो टाइप से हो सकता है। एक नेचुरल हो सकता है, जैसे आप किसी के यहाँ गए तो रोज़ के स्टेम लेके आए, तो बताओ वो खुद से तो ग्रो होने नहीं लगा, उसको आपने सॉयल में ग्रो किया, तब उसने रूट्स अपीयर हुई ना उसमें से, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। लेकिन अगर कोई भी प्लांट अपने आप उसमें से बर्ड्स अपीयर हो जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से नया प्लांट अपीयर हो जा रहा है, तो दैट इज नेचुरल। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब वी डू दैट, वी परफॉर्म दैट एक्टिविटी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हैव यू सीन द स्वीट पोटैटो? सब लोग ने खाया भी होगा। ठीक है? स्वीट पोटैटो का चाट भी बहुत अच्छा बनता है, सब लोग ने खाया होगा। स्वीट पोटैटो एक्चुअली है क्या? रूट है। और आप देख सकते हो इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में, कि हाउ द ट्यूबरस रूट, ऐसे ही रूट्स को ट्यूबरस रूट बोलते हैं जो कहीं से भी स्वेल कर जाए। इसीलिए पोटैटो का भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, ट्यूबर बुलाते हैं। तो ट्यूबर का मतलब ये होता है जिसका प्रॉपर शेप ना हो। ठीक है? तो ट्यूबरस रूट हो गई, जैसे ट्यूबरस स्टेम होती है ऐसे ट्यूबरस रूट भी है। क्लियर? सो इन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट इन द ट्यूबरस रूट द सो मेनी एडवेंटिटियस बड्स। एडवेंटिटियस बड्स मतलब बड्स को जहाँ से अराइज होना चाहिए वहाँ से अराइज नहीं हो रही हैं। ठीक है? तो दे आर अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स पार्ट से निकल आ रही हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एडवेंटिटियस बड्स। नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द एडवेंटिटियस बड्स द न्यू प्लांट अपीयर, उससे नया प्लांट आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रूट है दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब दैट इज डेवलपिंग अ न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट को डेवलप कर रहा है। तो वी कैन से दिस इज अ नेचुरल मेथड, एंड नेचुरल मेथड बाय विच पार्ट? बाय रूट। सो द मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली लाइक एज स्वीट पोटैटो। क्लियर? तो इफ एनीबडी इज हैविंग द फील्ड ऑफ स्वीट पोटैटो, देन नो नीड टू कल्टिवेट देम अगेन एंड अगेन। क्लियर? देयर रूट विल जस्ट डेवलप द न्यू प्लांट, उनके जो रूट्स होंगी उससे नया प्लांट अपीयर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, by stem. You all know about so many stem, those can participate in the reproduction. They can develop a new plant if we just grow them in the favorable condition or we provide the favorable condition, then it can happen. Now you cannot say you can start that cultivation of the potato at your home. It require favorable condition. इसको favorable condition चाहिए। जैसे अब तुम कहो कि एप्पल बहुत महंगा है तो हम उसको अपने घर पे ही कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है? तो बाई स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम सच एज राइजोम, जिसको हम राइजोम बुला सकते हैं, लाइक एज इन बनाना, बल्ब्स, जैसे अनियन में आपने देखा होगा, गार्लिक में देखा है आपने, डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। आपने कभी कभी देखा होगा कि अनियन को भी, अगर अनियन में रूट्स होती है ना, ठीक है, देखा होगा आपने अनियन में रूट्स होती हैं, अगर उसको भी थोड़ा सा मॉइस्ट अगर ऐसे रख दिया जाए तो उससे भी प्लांट अपीयर होने लगता है, प्लांट डेवलप होने लगता है।
ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल दोज कैन रिप्रोड्यूस बाय द स्टेम लाइक एज पोटैटो, बनाना, जिंजर, गार्लिक, अनियन, मिंट। ठीक है, मिंट के प्लांट भी ऐसे होते हैं। आपने अगर आपके घर पे जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो होता होगा उस सॉयल में वी कल्टिवेट द मिंट को डेवलप कर सकते हैं। आपने एक बार मिंट लगा दिया, उसके बाद उसकी स्टेम धीरे धीरे ग्रो होती रहती है। क्लियर है। स्ट्रॉबेरी, सेम मेथड विद द स्ट्रॉबेरी आल्सो। तो दीज आर द स्टेम and they can develop the new plant by the stem. So it is also a natural method. ये भी natural method है। We are not involved anywhere, हम involve नहीं है। अब तुम कहोगे सर हम इन्वॉल्व नहीं है तो प्लांट कल्टीवेट, तुमने फर्स्ट टाइम तो उसको कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा ना भाई। पोटैटो का कल्टीवेशन नहीं करोगे तो ये तो है नहीं तुम्हारे घर में बोरे में पोटैटो है तो वहीं से नया प्लांट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बाई लीफ यू कैन सी अ लीफ एंड ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ। मार्जिन मतलब जो उसकी जो साइड के जो पार्ट होते हैं, आपने देखा भी होगा जो लीफ के पार्ट होते हैं इस तरह से, ये इसकी जो मार्जिन होती है, ऑन द मार्जिन सम बर्ड्स डेवलप। मार्जिन पे क्या डेवलप हो जाते हैं? बर्ड्स। ठीक है, आज के बाद बायोलॉजी में कहीं पे भी लेट्स वर्ड आ जाए, लीफलेट्स, प्लांटलेट्स, मतलब उसका छोटा पार्ट। अगर कहीं पे लिखा है लीफलेट्स, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? लीफ का छोटा पार्ट। अगर कहीं पे लिखा है प्लांटलेट्स, इसका मतलब स्मॉल प्लांट। क्लियर। सो सम प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द लीफ आल्सो। क्लियर। लाइक एज द एग्जांपल ऑफ ब्रियोफाइलम, एंड ब्रियोफाइलम इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ मिलियंस। क्यों? क्योंकि जब इसकी लीफ होती है तो इसके मार्जिन पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। व्हेन दीज बर्ड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे डेवलप द न्यू प्लांट। तो बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ मिलियन। इसको और क्या बुलाते हैं? मदर ऑफ मिलियंस बुलाते हैं। ठीक है, तो इन द डायग्राम यू कैन सी दैट मार्जिन, एट द मार्जिन ऑफ द लीफ द बर्ड्स अराइज, बर्ड्स अपीयर, एंड व्हेन दीज बर्ड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे डेवलप टू द न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट डेवलप कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड द नेचुरल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द स्टेम, you can observe the ginger, you can observe the onion, and you will get to know, yes, whatever I told you in the lecture you can correlate with your practical life. आप अपनी practical life से भी इसको connect कर सकते हो। that will just you will be more interesting। ठीक है, ये और ज़्यादा interesting हो जाएगा टॉपिक ये। ठीक, come to the next part. now we are going to start the artificial। ठीक है, अब artificial is used for the commercialization। ठीक है, अगर आपको जैसे नर्सरी डेवलप करनी है, रोज़ की नर्सरी केवल डेवलप करनी है, तो यू जस्ट ब्रॉट फ्यू प्लांट्स ऑफ द रोज़। नाउ हाउ विल यू कल्टिवेट, बिकॉज यू डोंट हैव द सीड्स ऑफ द रोज़, आपके पास रोज़ की सीड्स नहीं है। then what will you do? you will perform artificial method of vegetative propagation. you will start cutting the stem and you will sow that stem in the soil. after few days from that stem the roots will arise, उससे roots arise हो जाएंगी तो एक नया plant develop कर लेगा। ठीक है, तो by this method you can commercialize, आप उसको commercialization भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत जगह ऐसा ही होता है, जो नर्सरी आपने सुना होगा वहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन होता है। लाइक एज फर्स्ट वन इज कटिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड पे आ रहे हैं, दैट इज कटिंग। आपने सुना भी होगा, मैंने अभी अब आपको बताया भी था कि कलम लेके आते हैं, स्टेम कटिंग लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टेम कटिंग क्या करते हैं? स्टेम लेके आते हैं, उसको पेन का शेप को थोड़ा सा बना के, ठीक है, और उसको सॉयल में क्या कर देते हैं? सो कर देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज को वाटर वगैरह देते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो नया प्लांट डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो दैट इज आर्टिफिशियल। वी आर परफॉर्मिंग दिस स्टेप, दैट्स वाई इट इज नोन एज व्हाट? आर्टिफिशियल। सो कटिंग, स्टेम कटिंग और मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होता है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मेनी हॉर्टिकल्चर प्लांट like as grapes, rose, sugar cane, China rose, so many plants you can cultivate. In this method 20 to 30 centimeter long piece of stem are planted in a natural position in the wet soil। हमेशा wet soil में आप उसको sow करोगे। ठीक है, इट गिव्स ऑफ रूट्स, उससे रूट्स निकल आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लीव्स, और प्लांट पूरी तरह से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखना, वॉट एवर प्लांट विल डेवलप बाई दीज मेथड दे विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वाई? बिकॉज द वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, द सेम पार्ट यू आर यूजिंग, द पार्ट ऑफ द सेम प्लांट यू आर यूजिंग। दैट्स वाई वॉट एवर प्लांट विल डेवलप दैट विल बी द आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वो अपने पेरेंट के क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कटिंग समझ में आ गया। नाउ कम टू द लेयरिंग।
ये कटिंग की एक पिक्चर मैंने लगा दी है, इससे आप समझ सकते हो कि इज अ पेरेंट प्लांट, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है। पेरेंट प्लांट से यू कट विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड एंड वट एवर जस्ट इक्विपमेंट यू यूज, ठीक है। यू कट द स्टेम, आफ्टर कटिंग स्टेम यू सो दैट स्टेम इन द सॉइल इन द फेवरेबल कंडीशन इन द वेट सॉइल, देन व्हाट हैपेंस, द न्यू प्लांट डेवलप, उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्टेम कटिंग, एंड स्टेम कटिंग इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेयरिंग। पहले मैं लेयरिंग समझा दूं, लेयरिंग क्या होता है। देखो लेयर मतलब क्या हो गया, किसी लेयर पे लगाना। जैसे सपोज ये प्लांट है, ये पेरेंटल प्लांट है, आप चाहते हो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाए, ये खुद नहीं डेवलप कर रहा है, ठीक है। आप चाहते हो उससे एक और नया प्लांट डेवलप करना, तो आप क्या करोगे, ठीक है। जैस्मिन वगैरह में ऐसे ही करते हैं। जैस्मिन का मान कुछ देर के लिए समझ लो कि दिस इज द प्लांट ऑफ द जैस्मिन, या जैस्मिन का प्लांट है, इसको आपने लिया, ठीक है, और इसमें नॉच लगाया, इस तरह से इसको बेंड किया, इसके स्टेम को बेंड किया, और इस स्टेम को बेंड करके यू जस्ट ब्रिंग दिस पार्ट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसकी स्टेम को बेंड करके इट विल बेंड, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होगा, वो बेंड हो जाएगा। इसको बेंड करके इसको आपने किसके कॉन्टैक्ट में ले आए, सॉइल के कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट वट एवर पार्ट विच कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉइल दैट विल डेवलप द रूट्स, उससे रूट्स डेवलप हो जाएंगी। नाउ दिस पार्ट यू विल सेपरेट दिस पार्ट फ्रॉम द पेरेंट पार्ट, इसको आप पेरेंट पार्ट से सेपरेट कर दोगे, तो ये क्या बन गया, इंडिपेंडेंट प्लांट बन गया। समझ में आया, फिर से समझो, ये प्लांट लिया, जैस्मिन का प्लांट लिया, ठीक है। जैस्मिन का प्लांट लेके उसकी जो स्टेम है उसको ऐसे नॉच लगाया, ठीक है। नॉच लगा के उसको किसके कांटेक्ट में ले आए, सॉइल के कांटेक्ट में ले आए, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, द पार्ट विच कम अंडर इन द कांटेक्ट ऑफ द सॉइल दैट विल डेवलप द रूट्स, एंड आफ्टर दैट यू विल सेपरेट द पार्ट दिस प्लांट टू द पेरेंटल प्लांट, उससे पेरेंटल प्लांट से उसको क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। नाउ द अनदर इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट। क्लियर, सो दिस इज आल्सो व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बट आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज लेयरिंग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेयरिंग, one is mound layering and another one is the air layering, ठीक है। these topics are not in your syllabus, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड बस दिया होगा नाम, बट उसके मेथड आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वट एवर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू शुड नो हाउ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी परफॉर्म। क्लियर, सो लेयरिंग समझ में आ गया, लेयरिंग होती कैसे। नाउ सी, इन लेयरिंग द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, रूट्स को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दे रहे हैं ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट। डिटैच मतलब जब तक वो अलग हो रहे हैं। क्लियर है, तो लेयरिंग दो मेथड से होती है, एक माउंड लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम parental plant, now you just brought one stem of the parental plant in the contact of the soil, what happens, this part develop the roots, इस पार्ट ने क्या डेवलप कर दिया, रूट्स डेवलप कर ली, एंड फ्रॉम दिस पार्ट द न्यू प्लांट अपीयर, न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो होने लगा। नाउ यू जस्ट सेपरेट, ये पेरेंटल प्लांट से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल डेवलप अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट, ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट लेयरिंग, ये माउंड लेयरिंग है। नाउ कम टू द एयर, एयर लेयरिंग भी होती है, ठीक है। ये माउंड लेयरिंग के बारे में लिखा हुआ है, कैन बी इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग द ब्रांच ऑफ द ग्राउंड टू द ग्राउंड, कवरिंग इट विद मॉइस्ट सॉइल, इसको कवर कर देंगे मॉइस्ट सॉइल से। द एपिकल पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, जो एपिकल पोर्शन है वो एक्सपोज रहेगा, उस पर लीफ आ जाएंगी, ठीक है। द पार्ट बिलो द सॉइल डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स क्यों बुला रहे हैं, बिकॉज दैट रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द स्टेम। याद रखना, अगर कहीं पे भी स्टेम से, ठीक है, रूट्स अराइज हो रहे हैं तो उस रूट्स को क्या बुला सकते हो, एडवेंटिशियस रूट्स। सो द लेयर्ड ब्रांच इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और फिर उस प्लांट को पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर दोगे, दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट प्लांट। क्लियर, सो वी कैन परफॉर्म दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ माउंड लेयरिंग इन द केस ऑफ जैस्मिन एंड मैग्नोलिया, ठीक है। दीज टू प्लांट कैन बी propagated or can be cultivated by this method. Now come to the next part, air layering, ठीक है। You just do the scrap, जैसे ये मान लो ये प्लांट है, इसकी ब्रांच पे स्क्रैप कर दिया, ठीक है। स्क्रैप करने के बाद यहाँ पे कुछ सॉयल को कलेक्ट करके उसको पॉलीथिन से रैप कर दिया। दिस इज अ मेथड हाउ द पीपल, हाउ द फार्मर परफॉर्म, हाउ द हॉर्टिकल्चर में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। एक प्लांट लिया, उसमें स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप करने के बाद उसमें कुछ सॉयल लगा दी, सॉयल लगाने के बाद, और सॉयल वेट रहेगी, याद रखना, वेट सॉयल हमेशा रैप करेंगे। वेट सॉयल रैप करने के बाद उसके ऊपर पॉलीथिन रैप कर दिया,
पॉलीथीन इसलिए रैप करते हैं ताकि उसकी जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो रिटेन रहे, मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे। आफ्टर फ्यू डेज अगेन द रूट्स अपीयर हो जाएंगे और उसको फिर से सेपरेट करके एक नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या बुलाते हैं, एयर लेयरिंग। द अ पार्ट ऑफ एरियल ब्रांच इज स्क्रैप, उसको पहले स्क्रैप कर लेंगे। द स्क्रैप पार्ट इज रैप्ड विद डैम मड और डैम सॉइल। अ पॉलीथीन इज और प्लास्टिक शीट इज रैप, कवर कर देंगे उसको टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। आफ्टर फ्यू वीक्स रूट इमर्ज आउट, उससे रूट्स निकलेंगे। स्क्रैप पार्ट ऑफ द स्टेम, एट दिस स्टेज द स्टेम विद न्यूली डेवलप रूट सिस्टम इज रिमूव, उसको रिमूव कर दोगे और आप उसको क्या कर लोगे, कल्टीवेट कर लोगे, नया प्लांट डेवलप हो गया। अगेन वी कैन यूज दिस मेथड इन द केस ऑफ जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, लेमन एंड चाइना रोज, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्लांट्स वेयर वी कैन इंड्यूस दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड को इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस मतलब हम कर रहे हैं ना उसको, तभी तो हो रहा है, नहीं तो एयर लेयरिंग तो होगी नहीं अपने आप। क्लियर है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल के दो समझ में आ गए, पहला कटिंग और दूसरा लेयरिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक्चुअली व्हेन देयर इज ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टेक प्लेस, दैट टेक्निक इज आल्सो नोन एज ग्राफ्टिंग, ठीक है। वहाँ पे भी हम ग्राफ्टिंग टेक्निक बुलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी को इंजरी हो गई, किसी को अगर बर्न हो गया, तो आपने सुना होगा प्लास्टिक सर्जरी। तो वहाँ पे क्या करता है कि बॉडी में कहीं के और के स्किन को ले जाके, तो वो जो स्किन हम ले जा रहे हैं ना उसके ऊपर लगाने के लिए, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको और क्या बुला सकते हैं, ग्राफ्ट बुला सकते हैं। इसका मतलब है, ग्राफ्ट का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको फिट कर देना, कुछ ऐसी मीनिंग निकल रही है, समझ में आया। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यही तो होता है कि इफ एनी वन पर्सन द ऑर्गन फेल, ऑर्गन अगर फेल हो गया, जैसे सपोज किडनी फेल हो गई, देन व्हाट हैपन, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट। दो रेमेडी होती है, या तो हेमियोडायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेंगे, किसी डोनर से किडनी को लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे टू द रेसिपिएंट वन, ठीक है, जिसकी किडनी फेल हो गई थी। तो हो क्या रहा है, ग्राफ्टिंग हो रही है, समझ में आया। तो ग्राफ्टिंग का मतलब एक चीज क्लियर होगी कि ग्राफ्टिंग मतलब कोई पार्ट एक जगह से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है। सो सेम थिंग हैपन इन द प्लांट आल्सो, यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट इज हैपनिंग। देयर इज ए मेन प्लांट, एक मेन प्लांट है, उससे हमने एक स्टेम को कट कर दिया जिसको बोलते हैं स्क्योन, ठीक है। स्क्योन को लेके उसके बाद एक जो दूसरा प्लांट है उसकी स्टेम के ऊपर को हटा दिया, ठीक है, और उसमें जो नीचे पार्ट बचा उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसके बाद स्टॉक और स्क्योन को क्या कर देते हैं, दोनों को ऐसे ऐड करके और उसके ऊपर सॉइल लगा के उस पर रैप कर देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज के बाद क्या होता है, दोनों ही पार्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। मर्ज हो जाते हैं तो दो वेराइटी आप क्या कर दिया, आपने मर्ज कर दिया, ठीक है। दिस मेथड कैन बी परफॉर्म इन द केस ऑफ मैंगो वगैरह में ये मेथड ज़्यादा परफॉर्म होता है। क्लियर है। तो एक बार देख लो इसको, क्या होता है ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सुपीरियर क्वालिटी प्लांट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट। आप देख सकते हो यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट है, एंड बाई मिक्सिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट प्लांट वी कैन डेवलप अ क्वालिटी प्लांट, कोई क्वालिटी प्लांट को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो रूट सिस्टम इज टेकन स्टॉक, ठीक है, एंड द शूट सिस्टम इज नोन एज स्क्योन, एंड दीज आर ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर देंगे, जब ज्वाइन कर देंगे तो एक नया प्लांट वहां से डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट आउट, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर वी कैन नॉट परफॉर्म एट आवर होम, ठीक है। हम इसको अपने घर पे, इसको मोस्टली जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर के आपने सुना होगा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे मोस्टली परफॉर्म करते हैं। बट टिश्यू कल्चर यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन सीड, आप सीड के हेल्प से समझ सकते हो। जैसे आपके घर में चना है, ग्राम रखा है, ठीक है, तो आपने ग्राम निकाला, उससे ग्राम चने को निकाल लिया और चने को क्या किया आपने, उसको सोक कर दिया वाटर में, यू सोक द ग्राम इन द वाटर, ठीक है, होल नाइट, मतलब इफ़ यू जस्ट लीव फॉर ओवरनाइट छोड़ दिया आपने, तो एक तो पहला चेंज क्या आएगा उस सीड में, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन और के बाद उसमें क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन होने लगेगा, ठीक है। आई एम जस्ट को रिलेटिंग, द सीड जर्मिनेशन इज नॉट इक्वल टू टिश्यू कल्चर, आई एम जस्ट को रिलेटिंग, दोनों ही मेथड को मैं को रिलेट कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर। क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर दैट सीड इज टिश्यू। कुछ टाइम के लिए समझ लो कि सीड क्या है, टिश्यू है, उसको आपने किसी प्लांट से क्या किया, सेपरेट किया। एज यू प्रोवाइड द वाटर,
एंड द वार्म कंडीशन टू द सीड टू जर्मिनेट, उसको आप वार्म कंडीशन प्रोवाइड कराते हो, मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हो टू जर्मिनेट, ताकि जिससे वो क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए. सेम एज यू जस्ट प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन टू द टिश्यू, ऐसे ही हम टिश्यू को फेवरेबल कंडीशन देते हैं, एंड एज द टिश्यू विल गेट द फेवरेबल कंडीशन इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग. Like as in 9th class you came to know there is a one type of tissue in the plant, that is meristematic tissue. Meristematic tissue are prominent to divide, ठीक है, they are specific for the cell division. That's why we take out which tissue, that is meristematic tissue. Meristematic tissue is taken out and we provide culture to them, ठीक है, उसको हम कल्चर प्रोवाइड कराते हैं. कल्चर में क्या होगा, अब कल्चर में ये तो है नहीं उसको डांस करेंगे, ठीक है, और खाना प्रोवाइड कराएंगे, तो कल्चर में क्या होगा, कल्चर में कार्बन सोर्स होगा, हार्मोन्स होंगे, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, इस तरह से उसको हम कल्चर प्रोवाइड करा देते हैं. और वॉट एवर टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय दैट टिश्यू, ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्लांट से निकाल लिया, तो प्लांट से निकाल लिया तो उसको कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा. जैसे अगर किसी एक बेबी को उसकी मदर से अगर हमने अलग कर लिया तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे वो एंटरटेन रहे, उसको खिलाएंगे, उसको जो है घुमाने ले जाएंगे, ऐसा करते हैं ना, उसको कल्चर करते हैं कि नहीं करते. सेम एज टिश्यू को तो आपने उसके मदर प्लांट से सेपरेट कर लिया, ठीक है, अब उसको आपको वही कंडीशन, वैसे ही कंडीशन प्रोवाइड करानी है. क्लियर है. तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, वॉट एवर फेवरेबल टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड. सेकेंड आप क्या प्रोवाइड कराओगे, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, कार्बन सोर्स, हार्मोन्स दैट द टिश्यू गेट इन द मदर प्लांट, जो अपने मदर प्लांट में उसको मिलता है. नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, द टिश्यू विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, टिश्यू में जर्मिनेशन होने लगेगा, जैसे सीड में जर्मिनेशन होने लगा, ठीक है. एंड एज दैट विल डिफरेंशिएट, जैसे वो डिफरेंशिएट होने लगेगा उसको बुलाते हैं कैलस. यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा हुआ है कैलस, ठीक है, इट इज नोन एज कैलस. मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जब सेल्स में डिवीजन होने लगेगा तो दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट, कैलस. नाउ एट दिस कंडीशन यू जस्ट सो दैट पार्ट इन द सॉइल, उस पार्ट को कहाँ पे सो कर दोगे, सॉइल में सो कर दोगे. नाउ इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट डेवलप कर लेगा. तो आइडिया लग गया. टिश्यू कल्चर, देखो टिश्यू कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक नाउ अ डेज, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. सपोज अगर कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट में अगर कोई डिजीज लग गई है, कोई प्लांट है जो बहुत अच्छा है, बहुत डिजायर्ड वैरायटी है वो, ठीक है, और अगर उस प्लांट में डिजीज लग गई है एंड यू वांट टू सेव दैट प्लांट, उस प्लांट को आप सेव करना चाहते हो, उसकी स्पीसीज को बचाना चाहते हो, तो यू कैन परफॉर्म टिश्यू कल्चर. क्लियर. इट इज़ अ वेरी, वी कैन से इट इज़ अ वेरी फास्ट रैपिड मेथड है, ठीक है. इस मेथड से हम एक ही टाइम पे कई सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, तो उसका कॉमर्शलाइजेशन बहुत होता है टिश्यू कल्चर का, ठीक है. टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, छोटे छोटे सैपलिंग तैयार कर देते हैं, और सैपलिंग को ले जाके जब कोई अपने कल्टीवेट करता है अपने ग्राउंड पे, अपने फार्म लैंड पे, देन इट डेवलप वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से डेवलप होता है. तो इस टिश्यू कल्चर का हम कॉमर्शलाइजेशन भी कर सकते हैं, और ऐसी वेराइटीज़ जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जो खतरे में हैं, उनको भी बचा सकते हैं. ऐसी वेराइटी जिनमें डिजीज़ लगी है उसको भी बचा सकते हैं, ठीक है, और ऐसी वेराइटी जो एंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, उसको भी बचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर. क्लियर. सो इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. अब देखो माइक्रो क्यों ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कलेक्टिंग द टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, माइक्रो. आप माइक्रो पार्ट ले रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू इज कट फ्रॉम अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ आर्टिफिशियल कल्चर. आप उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर रहे हो, उसमें क्या क्या होगा, कार्बन सोर्स होगा, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट. अब देखो एक वर्ड आया स्टेराइल, ठीक है. व्हेन यू गो टू द डॉक्टर आफ्टर हैविंग इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है स्टेराइल कर दो, ठीक है. डॉक्टर क्या कहता है, स्टेराइल कर दो, इसके इस एरिया को स्टेराइल कर दो. स्टेराइल का बायोलॉजी में दो मतलब होता है. एक स्टेराइल का मतलब होता है दैट पर्सन कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, और एक स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल फ्री, ठीक है. डिसइंफेक्टेंट डाल के उसको माइक्रोबियल फ्री कर दे रहे हैं, तो उसको भी क्या बुलाते हैं, स्टेराइल. तो आपने डॉक्टर के या कंपाउंडर के यहाँ ये सब सुना होगा कि स्टेराइल कर दो. तो स्टेराइल मतलब यहाँ पे भी वही है, माइक्रोबियल फ्री, क्योंकि अगर माइक्रोब डेवलप हो जाएंगे देन द प्लांट विल नॉट बी एबल टू डेवलप, प्लांट डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो इन दिस कंडीशन द टिश्यू प्रोलिफरेट करने लगेगा, ग्रो होने लगेगा, डिवीजन करने लगेगा, एंड फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज कैलस. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इन द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज नोन एज व्हाट, कैलस, विच डेवलप इनटू अ प्लांटलेट. अभी मैंने बताया था ना, अगर बायोलॉजी में कहीं पे भी लास्ट में लेट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता चलो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना लेट अस गो. तो यहाँ पे प्लांटलेट का मतलब क्या है, प्लांट का छोटा पार्ट, ठीक है.
तो छोटा वर्जन ऑफ द प्लांट इज नोन एज व्हाट, प्लांटलेट. सो दैट विल डेवलप इनटू द प्लांटलेट एंड विच विज ट्रांसफर टू द सॉइल. उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे. वी विल हैव द प्लांट और हमें न्यू प्लांट मिल जाएगा. क्लियर है. in this slide you can easily observe that how the tissue culture is performed. अब यहाँ पे तो इनिशियल स्टेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा डेवलप हो गया है, कैलस है, इसको आप कह सकते हो कैलस है. अब धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है, इसको फिर हम इसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं. तो बात समझ में आ गई. तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर को मैंने किससे कनेक्ट किया, सीड से. ठीक है, सीड को आपने निकाला, सेम एज वी टेक आउट द टिश्यू फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, जैसे आप सीड को सोक करते हो वाटर में, ठीक है, उसको होल नाइट रखते हो, 1-2 दिन, उसके बाद कपड़े में लपेट के रखते हैं, मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, वार्म कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, सेम एज वी प्रोवाइड द कल्चर टू द टिश्यू एंड इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग. और ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा. एज इट विल जर्मिनेट द पार्ट इज नोन एज व्हाट, कैलस. जैसे सीड में सीडलिंग बुलाते हैं, सेम एज यहाँ पे क्या बुलाएंगे, कैलस बुलाएंगे. एंड एट दैट कंडीशन इट विल ट्रांसफर इन द सॉइल. इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर है. तो इन दिस वे नाउ इट इज क्लियर. सब लोगों को समझ में आ गया. यस, okay, so I am completing this session. And how did you like the session? Please write down in the comment box and please don't forget to press the like button. Clear? So I am completing this session. Stay at your home, stay safe, stay fit. Jai Hind, Jai Bharat, love you, goodbye.